Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. We have started chapter 7 and also we have studied so many topics related to this chapter, and today we are going to start modern industries in India. Okay. Let us see first we will study about cotton textile, okay, cotton textile industry, and then after we will study about jute industry. Okay, this the first jute industry was started when George Auckland brought in India the spinning jute spinning machine. Okay, and also the first industry of this cotton textile was established in Mumbai. Okay, so let's start this topic in detail. Okay, so modern industries in India. In the 20th century, many industries came up in India as a result of the force of circumstances rather than active encouragement by the British. These are as follows. We have seen that in the 20th century a lot of changes, or you may say many industries came up in India. कई सारे इंडस्ट्रीज इंडिया में शुरू किए गए, जिसका रिजल्ट हम क्या देखते हैं, सम फोर्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस में भी हो सकता है, किसी का फोर्स बस हो या रादर देन एक्टिव इनकरेजमेंट हो किसका, ब्रिटिशर्स का। और फिर देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। द न्यू इंडस्ट्रियल अवेकनिंग इन इंडिया वाज लिंक्ड विद द cotton textile industry, and the first industry that started in India was of cotton textile industry, जिससे कि लोग जागरूक हुए। पहला जो टेक्सटाइल ओपन हुआ इंडिया में, जिसकी इंडस्ट्रियल अवेकनिंग हुई, पहले इंडस्ट्रियल जो कि इंडिया में वाज लिंक्ड विद, किससे संबंधित था ये, cotton textile. The industry was first established in Mumbai, where the first cotton mill was established by Quas G. Nomhe in 1854. और पहला जो कॉटन इंडस्ट्री था वो मुंबई में स्टार्ट हुआ, और फर्स्ट कॉटन मिल was also established by Quas G. Nomhe in 1854. By 1877, several other cotton mills were started, cotton producing areas. और जैसे जैसे समय बीतता गया आप देखते जाएंगे कि 1877 में कई सारे कॉटन मिल स्टार्ट हो गए, जो कि किस एरिया में थे, जो जहाँ पर कॉटन प्रोड्यूस होता था उस एरिया में कॉटन की मिल बनाई गई। That areas means Ahmedabad, Solapur, Nagpur, etc. and some other places. According to an estimate, in 1879, हम जब 1879 की बात करते हैं, तब there were about 57 cotton mills spread all over the India। और उस समय 1879 की बात करें तो लगभग 59 कॉटन मिल्स हमारे इंडिया में क्या हो गई थी, स्प्रेड हो चुकी थी, फैल चुकी थी। ऑलमोस्ट 43,000 पीपल वेर इंगेज्ड, और इस कारखाने में लगभग 43,000 लोग जुड़ गए थे। कॉन्टिन्यूड इंक्रीजिंग डे बाई डे, और यह नंबर डिक्रीज नहीं हो रहा था, डे बाई डे इंक्रीज ही होता जा रहा था। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट बाय 1900, एक एस्टिमेट के द्वारा जब 1900 में हम पहुँचे तब उसकी संख्या कितनी हो चुकी थी, 84 मिल्स हैड स्टार्टेड ऑपरेटिंग टू बॉम्बे एलोन। Many of them were started by the Gujarati and Parsi businessmen who had made fortune through their trade with China। और यह बिजनेस पहले पहल किसके द्वारा शुरू किए गए, जो कि गुजराती और पारसी बिजनेस थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया और अपना लक्ष्य देखा
अपना लक आजमाया और भी उन्होंने अपना ट्रेड चाइना के साथ करना शुरू किया। The Swadeshi movement 1905 expedited its growth, and by 1905 the number of cotton mills in India rose to 206, which employed nearly 1,96,000 persons। और जैसे जैसे समय बीतता गया हम देखते हैं 1905 में यहाँ पर कॉटन मिल लगभग 206 हो चुकी थी और कितने लोग एम्प्लॉय हो चुके थे 1,96,000। In the earlier stages, this textile industry had to face many problems। और स्टार्टिंग में जो इसका इनिशियल स्टेज था इस इंडस्ट्रीज को काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। फर्स्टली इट फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू compete with the cheap textile imported from Britain। और जो ब्रिटेन के कपड़े थे जो कि हम थोड़ा सा मार्केट में compete नहीं कर पा रहे थे, क्यों थोड़ी प्रॉब्लम वो हो रही थी, क्यों क्या कारण था जो कि जो विद हम उसका compete नहीं कर पा रहे थे, कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे जो ब्रिटेन से जो चीप कपड़े आया करते थे। Secondly, everywhere the government provides protection to the local industries by imposing heavy duties on imports। और धीरे धीरे इन लोगों ने गवर्नमेंट्स ने प्रोवाइड किया कि किसके प्रोटेक्शन के लिए, लोकल इंडस्ट्रीज के प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने क्या अप्लाई किया, हैवी टैक्स लगा करके, ड्यूटीज ऑन imports। But it was a tragedy that the imperialist government in India refused to provide any protection to the local industry। और यहाँ क्या हुआ, एक ट्रेजिडी हो गई जो कि यहाँ के जो इम्पेरियलिस्ट थे, जो साम्राज्यवादी थे, गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया इस तरह के प्रोटेक्शन को लोकल इंडस्ट्रीज के लिए। Thirdly, it had to face heavy odds against the unlimited capital of the Western manufacturers। And also third point, also very important, that it had to face heavy odds only against the unlimited goods or capital of the Western manufacturers। In this connection, R.C. Majumdar rightly remarked, what? But these nascent growing industry like others had to make its way against enormous odds। अगर देखा जाए तो जो इंडस्ट्री ग्रोइंग कर रही थी बाकी की तरह यह भी क्या हो गई, धीरे धीरे बड़ा रूप ले लिया। इट हैड टू फाइट फॉर अ प्लेस इन द मार्केट। और इसको किसके लिए बस लड़ाई बाकी थी, मार्केट में अपने प्लेस के लिए केवल लड़ाई लड़नी बाकी थी। Securely held by the West and had to compete against the long and mature experience and unlimited capital of Western manufacturers। क्योंकि उनके पास पैसे भी अधिक थे, उनके पास गुड्स भी थे। In this unequal contest, it could not hope for any support from the government। इस तरह से देखा जाए तो हमारे पास कोई होप नहीं था कि हमारी चीज़ों को गवर्नमेंट हेल्प या सपोर्ट करेगी। Rather, as events showed, it had at first to face its direct hostility। And इसके बाद से हमें क्या सूझा कि first it had to face its own hostility। It was only during the First World War that the Indian textile industry got the chance of expanding when imports from Britain dwindled। जब यह एक चांस मिला हमको फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जैसे कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो कि फैलने का एक विस्तार रूप लेने का इसको एक चांस मिला। कैसे, व्हेन इंपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन dwindled। जूट इंडस्ट्री
Like the cotton industry, the jute industry was also started in India in 1850. जिस तरह से कॉटन इंडस्ट्री इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी, इसी तरह से हमारे यहाँ जूट इंडस्ट्री भी इंडिया में स्टार्ट हुई थी। किस ईयर में? 1850s में। ओके, दिस इंडस्ट्री एक्सक्लूसिवली डेवलप्ड इन एंड अराउंड कोलकाता। और यह जो जूट की इंडस्ट्री थी हमारे इंडिया में कहाँ लगाई गई? पहले पहल कोलकाता में। बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाई, जो कि वहाँ पर बहुत ही सुविधा थी किसकी? रॉ मटेरियल की सप्लाई के लिए। द फर्स्ट जूट मिल वाज स्टार्टेड व्हेन जॉर्ज मैकलैंड ब्रॉट जूट स्पिनिंग मशीनरी टू रिसरा। जब उन्होंने पहला स्पिनिंग मशीन रिसरा में लेकर के आए थे। आ स्मॉल टाउन इन बंगाल इन 1855। लेटर ऑन मेनी मोर मिल्स वेयर ओपनड बाय डिफरेंट पीपल। और धीरे धीरे जैसे पहला मिल इस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद से धीरे धीरे वहाँ के लोगों ने भी अपनी छोटी छोटी कई तरह की मिल्स ओपन करना शुरू किया। मोस्टली इन बंगाल। इन 1887 देयर वेर 20 जूट मिल्स एम्प्लॉइंग अबाउट 20,000। और धीरे धीरे लगभग कितनी मिल्स हो गई? 20 जूट मिल्स, और 20,000 लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल गया। In 1901 their number rose to 36, employing about 1,15,000 persons। और धीरे धीरे इसकी संख्या जैसे जैसे बढ़ती गई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी या रोजगार भी मिलता गया। वर्ल्ड वार फर्स्ट गेव अ पुश टू द जूट इंडस्ट्री। और हमें बहुत फ़ायदा मिला फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय जूट इंडस्ट्री का। कैसे? जूट इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग अ न्यू डिमांड फॉर सैंड बैग्स। ये उस जूट में सैंड, जो बालू होते थे वार के समय में, बालू उसमें पैक करके ले जाते थे। एंड कैनवास क्लोथ फॉर वार पर्पज। कैनवास क्लॉथ किसके लिए? वार के पर्पज से। In 1914 there were about 64 mills employing about 2,16,000 people. These industry also saw many ups and downs like the increasing competition। और यह इंडस्ट्रीज हमने कई बार अप्स एंड डाउन्स भी देखे। like increasing competition from substitutes। The recession means a period when economic decline, जब एक समय था जहाँ पर economic decline it least for 6 months, जो कि एटलीस्ट कितने मंथ के लिए होता है? 6 months। आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट द शॉक ऑफ द 1929 क्राइसिस etc। बट एज डॉक्टर तपन रॉय चौधरी मेक्स अस बिलीव, जिससे कि हमको डॉक्टर तपन रॉय चौधरी के द्वारा जो बिलीव, विश्वास दिलाया गया, जूट मैन्युफैक्चरर्स रिमेन्ड द ओनली इम्पॉर्टेंट मैन्युफैक्चरर्स दैट इंडिया एक्सपोर्टेड। एंड मीन्स क्या? जूट जो मैन्युफैक्चरर्स थे रिमेन्ड द ओनली, केवल क्या रह गए थे? द इम्पॉर्टेंट मैन्युफैक्चरर दैट India exported। Okay, so today only this much। So here's your homework, learn exercise B of chapter 4। Okay beta, tomorrow we will start new topic, coal mining industry। Okay, thank you।